Hello, everyone, and welcome to our first session. We're kicking things off with a really foundational topic human development. We're going to explore how our whole understanding of childhood and what it means to grow up has changed over time. So let's get right into it. So, I want to start with a big question, something to really get you thinking. Was childhood always the way we see it today? I mean, the games, the schooling, the protections, was it always like this? The answer to this question, you'll see, is what really got this whole field of study started. But before we can dig into that, we need to be on the same page. What are we even talking about when we say human development? Well, officially, it's the scientific study of how and why we humans change throughout our entire lives. And I mean the whole thing, from the moment of conception right up until the very end. Okay, so to understand where we are now, we need to know where we've been. Let's take a little trip back in time and start by looking at how children were seen historically in the Western world. So, if we go way back to medieval Europe, we're talking about the period between 500 and 1500 AD. The whole idea of childhood as a special phase of life, it just didn't exist, honestly. Children were basically seen as miniature adults. The term for this is preformationism. It meant everything from their clothes to their work was just a smaller version of what an adult did. Wild, right? Then we move into the 16th century and the view takes a really dramatic turn. The Puritans had this belief in original sin. What did that mean for kids? Well, they were seen as being born, kind of evil and stubborn. So the whole point of parenting and education was to tame this nature and civilize them, often through some pretty strict discipline. And then came the Enlightenment, which, sparked big debates about everything, including kids. You had two major opposing views. On one side was John Locke. He said a child is a tabula rasa, a blank slate. He believed kids are passive, and their character is completely shaped by experience. On the complete other end of the spectrum, you had Jean-Jacques Rousseau. He saw children as noble savages, born with this innate goodness. He thought that too much adult training in society could actually mess them up and corrupt them. So, a blank slate versus a pure soul, a huge debate. Okay, so that's a quick tour of Western thought. Now, let's bring it home. How has childhood been viewed through our own cultural lens, right here in India? It's a very different picture. And what a contrast it is. While some parts of the world were debating original sin, the traditional view in India has been to see the child as a form of God. Think of Bal Gopal, the infant Krishna. There's this deep, fundamental belief in the divinity and purity of children. It's a completely different starting point. You can see this reverence woven into the very fabric of our culture through the samskaras, or these key life ceremonies, right from conception, childbirth, the first solid food, all the way to the sacred thread ceremony. Each milestone is marked and celebrated. It shows just how sacred and significant each stage of a child's development is considered. Now, this traditional philosophy was also echoed by more modern Indian thinkers. Rabindranath Tagore, for instance, made such a powerful point. He said a child's natural curiosity shouldn't be boxed in by their parents' ideas, because that child is born into a newer, more evolved world than the one their parents grew up in. And Mahatma Gandhi had a very similar view. He also believed in that innate goodness of children. He really stressed that we should let them grow naturally, in an enriched environment, not just try to cram information into their heads, stuffing their minds. So we have all these fascinating philosophical ideas from different parts of the world. But how did we go from just thinking about childhood to actually studying it like a science? Let's look at that transition. Well, the research methods evolved in stages. It started with something pretty simple, baby diaries. Early scientists would just keep these super detailed journals about their own kids. Of course, they were often a bit biased. Then came what we call the normative period. A guy named G. Stanley Hall started studying huge groups of kids to figure out what was normal for different ages. And finally, a huge leap forward came with Alfred Binet, who developed the first intelligence tests to help identify kids who needed extra support in school. You could see the clear progression, right? From personal diaries to large-scale objective science. So let's bring our focus back to India one more time. How did the formal study of psychology and development actually take root and grow in our country? Let's trace our own journey. This timeline really tells the story. Before independence, as you'd expect, the field was dominated by British ideas. Then, right after 1947, the main effort was to take Western theories and just adapt them. But by the 1960s, a change was in the air. Scholars started shifting their focus to India's unique, on-the-ground problems.
And that led us to where we are now, in the indigenization phase. This is all about creating our own theories and models, ones that are actually built for and by our own culture. So, a lot of history, right? But why is any of this important for you as a future counselor or therapist? What's the practical takeaway here? It matters because this entire history forms the foundation for what you will actually do. There are four main goals in this field. First, you have to describe behavior, what's actually happening. Then you try to explain it, why is it happening? From there, you can work to predict future behavior. And finally, the most important step for a counselor is to modify behavior or intervene to help improve a person's life and well-being. Every bit of history we just talked about has shaped how we approach these four crucial goals. Look, the most important thing to take away today is that this isn't just dry academic history. It's a powerful tool for empathy. When you understand how differently childhood has been seen across cultures and across time, you're so much better equipped to connect with your client's unique story and their background. So I'll leave you with this question to think about. As a counselor, how will knowing this history actually change the way you listen to and connect with another person's journey? गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपके पीजी डिप्लोमा कोर्स का एक सबसे ज़रूरी फाउंडेशनल टॉपिक डिस्कस करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट। एक बात समझ लीजिए, एज अ फ्यूचर काउंसलर इस सब्जेक्ट को आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। इट्स एब्सोल्युटली नॉन नेगोशिएबल। तो चलिए पूरे फोकस के साथ इसे समझते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद अ सिंपल क्वेश्चन। कभी सोचा है आपने कि एक बच्चा हमेशा हमेशा चलने से पहले क्रॉल ही क्यों करता है? मतलब आखिर उल्टा क्यों नहीं हो सकता? इसका जवाब सिंपल है, क्योंकि देखिए, ह्यूमन डेवलपमेंट कोई रैंडम हैपहैज़र्ड प्रोसेस नहीं है। नहीं, ये कुछ रूल्स फॉलो करता है। एक बड़ा ही प्रिडिक्टेबल पैटर्न है इसका, और इसी पैटर्न को समझना आपके काम के लिए एज अ काउंसलर एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। सो यही है हमारा क्रूशियल पॉइंट। डेवलपमेंट केओटिक नहीं है। इट फॉलोज अ ब्लूप्रिंट। एक प्रॉपर सीक्वेंस है, एक सेट पैटर्न है। और जब आप इस ब्लूप्रिंट को समझ जाते हैं ना, तभी तो आपको पता चलता है कि आपके क्लाइंट की लाइफ में क्या एक्सपेक्टेड है और कहाँ कुछ डिविएशन हो रहा है, राइट? सो लेट्स लुक एट दीज फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। ओके, सो सबसे पहला प्रिंसिपल, इसका नाम है सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। आई नो थोड़ा टेक्निकल साउंड कर रहा है, बट इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। इट लिटरली मीन्स हेड टू टो। यानी डेवलपमेंट हमेशा ऑलवेज सर से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे नीचे पैरों की तरफ प्रोग्रेस करता है। और ये पिक्चर इस पॉइंट को बिल्कुल परफेक्टली इलस्ट्रेट करती है ना? देखिए, एक बेबी सबसे पहले अपनी नेक मसल्स पर कंट्रोल पाता है, इसीलिए तो वो खड़े होने से बहुत बहुत पहले अपना सर उठा सकता है। उसके बाद अपर बॉडी की स्ट्रेंथ आती है, तो वो बैठना सीखता है, और फाइनली जब लेग्स पर कंट्रोल आता है, तब जाके क्रॉलिंग और वॉकिंग शुरू होती है। सो द सीक्वेंस इज क्रिस्टल क्लियर, हेड टू टो। चलिए अब दूसरे नियम पर आते हैं। यह है प्रॉक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट। इसका मतलब क्या है? सिंपल, विकास यानी डेवलपमेंट बॉडी के सेंटर से शुरू होकर बाहर की तरफ जाता है। सोच के देखिए, नियर टू फार। पहले स्पाइनल कॉर्ड डेवलप होगी, फिर आर्म्स और आखिर में फिंगर्स। यही रीजन है कि छोटा बच्चा शुरू में किसी चीज को पूरे हाथ से अजीब तरह से पकड़ने की कोशिश करता है। उसके बाद बहुत बाद में वो फाइन मोटर स्किल्स आती हैं कि वो उसे अपनी उंगलियों से पकड़ पाए। ऑलराइट, इन दो मेन प्रिंसिपल्स के अलावा ये कुछ और पॉइंट्स हैं जो बहुत बहुत जरूरी हैं। पहला, डेवलपमेंट इरिवर्सिबल है। इट्स अ वन वे स्ट्रीट। आप चलना सीखकर उसे अनलर्न नहीं कर सकते। दूसरा, ये जनरल से स्पेसिफिक होता है। जैसे पहले एक बच्चा बस रोता है, फिर वो भूख, दर्द, नींद, इन सब के लिए अलग अलग तरह से रोना सीख जाता है। तीसरा, ये क्यूमुलेटिव है, यानी हर नई स्किल पिछली स्किल पर बिल्ड होती है। और हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए एज ए काउंसलर, हर बच्चे का पेस अलग होता है। सीक्वेंस यूनिवर्सल है, पर टाइमिंग बिल्कुल यूनिक है। सो प्लीज नेवर कंपेयर। ओके, तो अब प्रिंसिपल्स तो हमने समझ लिए, लेकिन सवाल ये है कि ये डेवलपमेंट आखिर होता कहाँ है, किन किन एरियाज में होता है? सो नाउ लेट्स एक्सप्लोर द डिफरेंट डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट को 3 बड़े हिस्सों में या डोमेन्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है फिजिकल डोमेन, इसमें बॉडी की ग्रोथ, मोटर स्किल्स, ये सब आ गया। दूसरा है कॉग्निटिव डोमेन, यानी सोचना, समझना, मेमोरी, लैंग्वेज, द होल मेंटल प्रोसेस। और तीसरा है सोशियो इमोशनल डोमेन, हमारे रिश्ते, हमारी फीलिंग्स, हमारी पर्सनैलिटी। बट यहाँ पर आती है सबसे इंटरेस्टिंग बात। ये जो 3 डोमेन्स है ना, ये सिर्फ टेक्स्ट बुक के अलग अलग चैप्टर्स नहीं हैं। रियल लाइफ में ये एक दूसरे से डीपली कनेक्टेड हैं। सोच के देखिए,
एक बच्चा जो फिजिकली ठीक नहीं है, क्या उसका पढ़ाई में मन लगेगा? ऑफ कोर्स नॉट। उसका कॉग्निटिव फोकस अफेक्ट होगा। और अगर किसी का सोशियो इमोशनल एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रेसफुल है, तो उसकी फिजिकल हेल्थ और लर्निंग दोनों पर असर पड़ेगा। रिमेंबर दिस, एज अ काउंसलर यू मस्ट ऑलवेज ऑलवेज टेक अ होलिस्टिक व्यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी हाउ दिस ऑल बिल्ड्स अप। अब हम इन तीनों डोमेन्स को पूरे ह्यूमन लाइफ स्पैन पर मैप करके देखेंगे। मतलब जन्म से लेके बुढ़ापे तक हाउ डू दीज एरियाज इवॉल्व। टिपिकली साइकोलॉजिस्ट लाइफ को इन स्टेजेस में डिवाइड करते हैं, प्रीनेटल से लेके लेट अडल्टहुड तक। ये स्टेजेस आपको एक तरह का फ्रेमवर्क देते हैं। इससे फायदा क्या है? सोचिए, जब आपके पास एक 45 ईयर ओल्ड क्लाइंट आएगा, तो आपके दिमाग में मिडिल अडल्टहुड के जो स्पेसिफिक चैलेंजेस और टास्क्स हैं वो क्लिक करेंगे। ये स्टेजेस बेसिकली आपको एक कॉन्टेक्स्ट देते हैं। अब देखिए, ये जो वेस्टर्न फ्रेमवर्क है नो डाउट बहुत यूजफुल है, बट हमारे अपने इंडियन कॉन्टेक्स्ट में एक और बहुत ही पावरफुल फ्रेमवर्क है, और ये आता है हमारे एंशिएंट टेक्स्ट से, जैसे कि धर्मशास्त्र। ये है आश्रम सिस्टम। आई एम श्योर आपने सुना होगा। इसमें लाइफ को 4 स्टेजेस में देखा जाता है। पहला ब्रह्मचार्य, द स्टूडेंट स्टेज, फिर गृहस्था, फैमिली और करियर पर फोकस, उसके बाद वनप्रस्था, जहां धीरे धीरे डिटैचमेंट शुरू होता है, और आखिर में संन्यास। एक बात जरूर याद रखिएगा, ये सिर्फ एक रिलीजियस कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल मैप है, लाइफ को मीनिंग और पर्पस देने का एक तरीका है, और आपके बहुत से क्लाइंट्स के लिए ये उनकी वर्ल्ड व्यू का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा हो सकता है। ऑलराइट, चलिए अब आते हैं कुछ बड़े सवालों पर। द ग्रेट डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट। ये वो डिबेट्स हैं जिन्होंने इस पूरी फील्ड को, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी को शेप किया है, और बिलीव मी, इन पर साइकोलॉजिस्ट आज भी डिस्कस करते हैं। सो पहली बड़ी बहस, कंटिन्यूअस वर्सेस डिसकंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या है? सिंपल, क्या डेवलपमेंट एक स्मूथ ग्रेजुअल प्रोसेस है, एक स्लो स्टेडी इंक्लाइन जैसा, या फिर ये डिसकंटिन्यूअस है, मतलब अलग अलग स्टेजेस में सडन जंप्स में होता है? अब इससे अपने क्लाइंट के बारे में सोचिए। क्या उनकी हीलिंग एक स्लो स्टेडी कंटिन्यूअस प्रोसेस होगी, या फिर उसमें अचानक आहा मोमेंट्स आएंगे, ब्रेक थ्रूज आएंगे? ये इमेज इस डिबेट को बिल्कुल परफेक्टली कैप्चर करती है। देखिए, क्या लाइफ एक स्मूथ रैंप की तरह है जहां चेंज इतना धीरे धीरे होता है कि नोटिस भी नहीं होता, या फिर ये सीढ़ियां चढ़ने जैसा है जहां हर स्टेप एक बिल्कुल नया लेवल है, जैसे चाइल्डहुड से एडोलेसेंस का जंप? इट्स अ ह्यूज जंप, राइट? दोनों ही पर्सपेक्टिव्स की अपनी अपनी वैल्यू है। और अब आते हैं उस डिबेट पर जिसके बारे में आप सबने सुना होगा, द मोस्ट फेमस वन ऑफ ऑल, नेचर वर्सेस नर्चर। हम जो भी हैं वो हमारी जीन्स की वजह से हैं, या हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी परवरिश की वजह से? हमारी पर्सनैलिटी, हमारे प्रॉब्लम्स, आखिर उनकी जड़ें कहाँ हैं? बायोलॉजी में या एनवायरनमेंट में? चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। लिएंडर पेस, महेश भूपति जैसे स्पोर्ट्स लेजेंड्स को ले लीजिए। क्या वो चैंपियन पैदा हुए थे? मतलब उनके अंदर कोई टेनिस जीन था, या फिर उनके कोचेस, उनके पेरेंट्स, उनकी सालों की ट्रेनिंग ने उन्हें चैंपियन बनाया? व्हाट डू यू थिंक? वेल, आज की मॉडर्न साइकोलॉजी कहती है कि इसका जवाब आइदर और नहीं है। द आंसर इज बोथ। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों का इंटरैक्शन। सोचिए, हमारे जीन्स हमें एक पोटेंशियल देते हैं, ए काइंड ऑफ अ ब्लूप्रिंट, और हमारा एनवायरनमेंट उस पोटेंशियल को शेप करता है, उसे बनाता या बिगाड़ता है। जैसे एक सितारिस्ट का बच्चा सितारिस्ट बन सकता है, उसमें पोटेंशियल है, पर बनेगा तभी ना जब उसे वो एनवायरनमेंट और ट्रेनिंग मिलेगी। सो आई लीव यू विद दिस फाइनल थॉट। एक सवाल जो इनफैक्ट आपके प्रोफेशन का सेंट्रल टास्क है। जब आपके सामने क्लाइंट बैठा होगा, तो आप उसकी स्टोरी में नेचर और नर्चर के इस कॉम्प्लेक्स डांस को, इस जुगलबंदी को कैसे देखेंगे? हमेशा याद रखिएगा, हर क्लाइंट की लाइफ एक यूनिक स्टोरी है, जिसके को-ऑथर्स हैं उनकी बायोलॉजी और उनकी बायोग्राफी, एंड योर जॉब इज टू लर्न हाउ टू रीड देम बोथ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक में डाइव करने जा रहे हैं जो काउंसलिंग की फील्ड में हर किसी के लिए एकदम फाउंडेशन है, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट को समझना। ये सिर्फ कोई एकेडमिक सब्जेक्ट नहीं है, बल्कि एक इफेक्टिव और कंपैशनेट प्रैक्टिस का कोर है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। हम सबसे इंपॉर्टेंट सवाल से स्टार्ट करेंगे। आखिर ह्यूमन डेवलपमेंट को समझना किसी भी काउंसलिंग प्रैक्टिस की नींव क्यों मानी जाती है? क्योंकि देखो, ये सिर्फ किताबी बातें या एब्स्ट्रैक्ट थियरीज से कहीं ज्यादा है। ये एक प्री रेक्विजिट है, एक जरूरी शर्त अपने फ्यूचर क्लाइंट्स को उनके इंटरपर्सनल, वोकेशनल और इमोशनल चैलेंजेस से डील करने में इफेक्टिवली हेल्प करने के लिए।
समझ लीजिए ये वो मैप है जिसे आप उनके सफ़र को समझने के लिए इस्तेमाल करेंगे। चलिए, सबसे पहले उस बायोलॉजिकल ब्लूप्रिंट को एक्सप्लोर करते हैं जो हर इंडिविजुअल को अंदर से शेप करता है। इसी कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं नेचर। और यहीं पर मैचुरेशन का आइडिया सामने आता है। ऐसे सोचिए कि ये हमारा इंटरनल प्री प्रोग्राम्ड शेड्यूल है। ये वो डेवलपमेंटल चेंजेस हैं जो टाइम के साथ नेचुरली होते हैं, बिना किसी स्पेसिफिक ट्रेनिंग या प्रैक्टिस के। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एडोलेसेंस के दौरान सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स का आना। ये 3 प्रिंसिपल्स जो आप स्लाइड पर देख रहे हैं, ये बताते हैं कि ये बिल्ट इन फोर्स कितनी पावरफुल है। पहला, ये यूनिवर्सल है, यानी हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। दूसरा, ये सीक्वेंशियल है, हमेशा एक प्रिडिक्टेबल ऑर्डर फॉलो करता है। और तीसरा, ये काफी रिजिलिएंट है, मतलब इस पर एनवायरमेंटल फैक्टर्स का असर कंपैरेटिवली कम होता है। ठीक है, अब चलते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर। अब देखते हैं नर्चर को, यानी वो सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो हमें बाहर से इन्फ्लुएंस करते हैं और हमें शेप करते हैं। फैमिली यानी परिवार अक्सर किसी भी इंसान की लाइफ में सबसे पहला और सबसे पावरफुल एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस होता है। ये हमारी सोशलाइजेशन की पहली क्लास होती है, जहां से हमें इमोशनल सपोर्ट मिलता है और हम अपने शुरुआती नॉर्म्स और वैल्यूज को सीखते हैं। तो यहाँ क्रूशियल पॉइंट ये है कि एक इंसान का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस या SES या तो उसके लिए अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल सकता है या फिर रुकावटें डाल सकता है। ये या तो रिस्क फैक्टर्स पैदा कर सकता है जैसे पॉवर्टी, या फिर प्रोटेक्टिव फैक्टर्स प्रोवाइड कर सकता है जो पॉजिटिव डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। और ये दिखाता है कि कल्चर हमारी लाइफ के लगभग हर एस्पेक्ट को कैसे शेप करता है। बड़े लाइफ इवेंट्स जैसे शादी से लेकर हमारे रोज के बिहेवियर्स और यहाँ तक कि जेंडर रोल्स तक, ये सब हम अपने सोसाइटी के कॉन्टेक्स्ट में ही सीखते हैं। इन बेड फैक्टर्स के अलावा हमें इंडिविजुअल लाइफ इवेंट्स के नेचर को भी समझना ज़रूरी है, क्योंकि जैसा हम सब जानते हैं, हर किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस एकदम यूनिक होता है। इन दोनों के बीच का फर्क समझना क्लाइंट की स्टोरी को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस वो कॉमन इवेंट्स हैं जो एक बड़े ग्रुप को एक्सपीरियंस होते हैं, जैसे कि प्यूबर्टी। इसके आगे नॉन नॉर्मेटिव इन्फ्लुएंसेस वो अनएक्सपेक्टेड, अनयूजुअल इवेंट्स होते हैं जिनका एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल पर बहुत बड़ा असर होता है, जैसे किसी पेरेंट की अर्ली डेथ। अब आइए देखते हैं कि ये सब मिलकर एक सबसे क्रूशियल कॉन्सेप्ट तक कैसे पहुंचता है कि डेवलपमेंट में टाइमिंग ही सब कुछ है। सही वक्त पर क्या होता है या क्या नहीं होता, उसी से सारा फर्क पड़ सकता है। अब इस स्लाइड में जो चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग है वो है इन दोनों कॉन्सेप्ट्स के बीच का डिफरेंस। एक क्रिटिकल पीरियड एक मस्ट हैपन विंडो है, जहां एक स्पेसिफिक इवेंट का होना नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। इसके आगे एक सेंसिटिव पीरियड एक बेस्ट टू हैपन विंडो जैसा है, किसी स्किल को सीखने का एक ऑप्टिमल टाइम, जैसे बचपन में लैंग्वेज सीखना। और ये हमें बिल्कुल वहीं वापस ले आता है जहां से हमने शुरू किया था। इन सभी कॉन्सेप्ट्स को समझना, नेचर, नर्चर, लाइफ एक्सपीरियंसेस और टाइमिंग, ये ऑप्शनल नहीं है। एक इफेक्टिव काउंसलर बनने के लिए ये नॉलेज बिल्कुल एसेंशियल है। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, इस सवाल को हमेशा दिमाग में रखें। आप इस टूलकिट का इस्तेमाल कैसे करेंगे अपने फ्यूचर क्लाइंट्स की स्टोरीज में इन अलग अलग इन्फ्लुएंसेस को पहचानने के लिए? क्योंकि याद रखिएगा, आपके काम की असली नींव यही होगी।